बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले श्रीनगर के नवाकदल इलाके में आज सुबह ही गोलियां चली। गोली के नतीजे में एक नौजवान जान बहक हुआ। माना जा रहा है कि कुछ नामालूम बंदूकबरदार इलाके में नमूदार हुए और उसके बाद उन्होंने एक गाड़ी में सवार एक शख्स पर, जिसकी शनाख्त श्रीनगर के सफाकदल के रहने वाले मीरान अली पठान के बतौर हुई है और माना जा रहा है कि उन्हीं की गाड़ी पर गोलियां चलाई गई है, जिसके नतीजे में वो जख्मी हुआ। जख्मी हालत में अगरचे उसे नज़दीकी अस्पताल श्रीनगर के SMHS अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम वहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। तो पुलिस ने मामले की निस्बत केस दर्ज किया है, तहकीकात भी शुरू की गई है और इस हलाकत के हवाले से या इस कत्ल के हवाले से अभी भी पुलिस पूछताछ कर रही है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि श्रीनगर के SKIC में आज कश्मीर यूनिवर्सिटी का 19वां कन्वोकेशन मुनक़द हुआ और इस कन्वोकेशन में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद थे। रामनाथ कोविंद के साथ साथ यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी और दीगर अफसरान और कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी मौजूद थे। इस मौके पर न सिर्फ यहाँ PhD स्कॉलरों को असनाद और मेडल से नवाजा गया, बल्कि इस मौके पर जो स्पीच रामनाथ कोविंद की जानिब से की गई, इसमें उन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी की अभी तक की कारकर्दगी पर रोशनी डाली और साथ ही साथ जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर डिग्रियाँ हासिल की हैं और जिन्हें असनाद से नवाजा गया, उन्हें मुबारकबाद भी पेश की है। इस मौके पर रामनाथ कोविंद ने अपने खिताब में कहा है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी का पढ़ना लिखने की रिवायत हमेशा रही है और कश्मीर के नौजवानों से लेकर कश्मीर के लोगों ने हमेशा यहाँ इस रिवायत को बरकरार रखा है। ताहम वायलेंस कभी भी कश्मीरियत का हिस्सा न थी और न रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को अपनी जो रिवायत है, अपनी लेगेसी है, उसको बरकरार रखते हुए नए सूबों की शुरुआत करनी होगी। Ms. Shahina Ghulam, School of Earth and Environmental Sciences. Ladies and gentlemen, Kashmir is a place that defies descriptions. Many poets have tried to capture its beauty, calling it paradise on earth. But it is ultimately beyond words. It must be this bounty of nature that has also made this place a hub of ideas. This valley, surrounded by snow-clad mountains, provided an ideal setting for sages and seers a couple of millennia ago. It is impossible to write a history of Indian philosophy without referring to Kashmir's contribution to it. One of the oldest manuscripts of the Rig Veda was written in Kashmir. This is the most conducive region for the philosophies to prosper. This is where great philosopher Abhinav Gupta wrote his expositions on aesthetics and methods for realization of God. Hinduism and Buddhism flourished here, as did Islam and Sikhism after it arrived here in later centuries. Kashmir is also the meeting point of various cultures. In medieval times, it was of course Lal Ded who showed the way to bring together various spiritual traditions. In the works of Laleshwari, you can see how Kashmir provides the very template itself of communal harmony and peaceful coexistence. This is also reflected in all aspects of life here, in folk arts and festivals, in food and dress. The core nature of the place has always been inclusive. Almost all religions that came to this land embraced a unique feature of Kashmiriyat that shunned orthodoxy and encouraged tolerance and mutual acceptance among communities.
ladies and gentlemen, I take this opportunity to urge upon the younger generation of Kashmir to learn from their rich legacy. They have every reason to know that Kashmir has always been a beacon of hope for the rest of India. Its spiritual and cultural influence has its imprint all across India. It was most unfortunate that this outstanding tradition of peaceful coexistence was broken. Violence, which was never part of Kashmiriyat, became the daily reality. इधर आज अपनी पार्टी की जानब से श्रीनगर में एक मीटिंग मुनक्कद हुई जिसमें पार्टी के सीनियर लीडर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी के साथ साथ दीगर लीडरान भी मौजूद थे और इस मौके पर यहाँ डीडीसी मेंबर डंगी बश से आई हुई डीडीसी मेंबर ने अपनी पार्टी का दामन थाम लिया। आपको बता दें कि परमीत कौर नामी ये डीडीसी मेंबर सज्जाद गनी लोन की तंजीम से वाबस्ता थी, ताहम उन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस का दामन छोड़कर आज अपनी पार्टी का दामन थाम लिया। इस मौके पर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया और साथ ही साथ उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए एक सवाल के जवाब में कहा है कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के लोगों को अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। आपको बता दें कि सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने इस सवाल का जवाब उस वक्त दिया जब उनसे ये पूछा गया कि आल पार्टी मीटिंग जो वज़ीर आज़म की सदारत में दिल्ली के अंदर मुनक्कद हुई उसका आउटकम क्या निकला। तो उसके जवाब में सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के लोगों को अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। ये आज डंगी वचा से जो डीडीसी मेंबर परनीत कौर जी थी उन्होंने आज ज्वाइन किया अपनी पार्टी में। ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस में थी और वहां से इन्होंने देखिए मुझे बहुत मालूम नहीं है डॉक्टर फारूक साहब ने किस बिना पे कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं या अगर पीडीपी वाले कह रहे हैं। जहां तक अपनी पार्टी का ताल्लुक है जो हमें फॉलो अप करना है हम लगे हुए हैं। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर अब बेगर्स यानी जो भीख मांगने वाले हैं उनकी तादाद बढ़ चुकी है और इसमें न सिर्फ बुजुर्ग और खवातीन शामिल हैं बल्कि बच्चों की तादाद भी अब सड़कों पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस तरह के मनाजिर न सिर्फ शहर श्रीनगर के अंदर है बल्कि राजौरी के अंदर या जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में भी इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। बाज़ लोगों का मानना है कि सरकार की जानब से इस मामले का नोटिस नहीं लिया जा रहा है क्योंकि इन बच्चों के लिए अभी पढ़ने का टाइम है, लेकिन सरकार की जानब से इसका नोटिस नहीं लिया जा रहा है, बल्कि जो गरीबी या मुफलिसी की वजह से भी ये बच्चे अब सड़कों पर निकलकर भीख मांगने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि ये लोग आदत से मजबूर होते हैं, लेकिन सरकार को इस चीज़ का भी नोटिस लेना चाहिए था। पापा काम करता है तो मम्मी बीमार थी, हॉस्पिटल में लेके गए। यहाँ राजौरी में कब से आए हो? राजौरी में लॉकडाउन जब पहले थी तभी 4 साल से दीदी पढ़ाई। तो पढ़े क्यों नहीं? पहले पढ़ते थे अंकल, अब नहीं पढ़ते। पहले कहाँ पढ़ते थे बच्चे आप? अपने यूपी में। यूपी में? अब क्यों नहीं पढ़ रहे हो? अब पैसा नहीं है तभी तो, राशन नहीं है घर पे तभी तो। राशन नहीं है, पैसा नहीं, इसलिए पढ़ रहे हो। बच्चे तेरा नाम क्या? रुजाना। तू क्यों मांगती है? पढ़ती क्यों नहीं है? पढ़ने लिखने नहीं आता है? पढ़ने लिखने नहीं आता। किसने भेजा तुझे मांगने के लिए? मम्मी ने भेजा। मम्मी क्या करती है? मम्मी घर पे बीमार है, घर पे बीमार है, घर पे है। पापा क्या काम करते हैं? पापा पत्थर ढोता। पत्थर ढोते हैं। इस तरह की सूरत हाल हर जगह पर है, न सिर्फ राजौरी के अंदर बल्कि जम्मू के दूसरे इलाकों से लेकर कश्मीर वादी में भी इस तरह के मनाजिर देखे जा रहे हैं कि जहां पर छोटी छोटी बच्चियां या छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर निकलकर भीख मांगते हैं। हालांकि जब से लॉकडाउन हुआ है या लॉकडाउन से पहले साल 2019 में 5 अगस्त का फैसले के बाद कश्मीर की सूरत हाल बदली हुई है और तब से ही लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर जो रोजगार है उनके मौके भी कम हुए हैं। हालांकि इसी से मुतल्लिक सवाल लोकसभा में भी पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर 5 अगस्त के फैसले के बाद तकरीबन 15 लाख नौकरियां चली गई हैं, लेकिन उसका जवाब भी सरकार की जानब से तोड़ मरोड़ कर ही दिया गया है। लेकिन अब जो लोग
सरकार के दफातर में काम करते हैं, मुख्तलिफ महकमा जात के अंदर काम करते हैं, तो उन्हीं में कंसोलिडेटेड स्वीपर्स और सफाई कर्मचारियों की जानब से जो खासतौर पर महकमा हेल्थ के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी जानब से आज डायरेक्शन ऑफिस श्रीनगर बेमिना में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे के दौरान उन्होंने कहा और उन्होंने मुतालबा किया कि उनके हक में भी मिनिमम वेज एक्ट को लागू किया जाना चाहिए। इस मौके पर एहतजाजी मुजाहरी ने कहा कि बाकी सभी महकमा जात में साल 2018 में ये एक्ट यानी मिनिमम वेज एक्ट को लागू किया गया था और तब से लेकर आज तक इस तरह के मुलाजमीन या कंसोलिडेटेड मुलाजमीन मिनिमम वेज एक्ट के तहत ही जो अपनी उजरत है वो हासिल कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ महकमा हेल्थ से मुंसलिक जो लोग हैं उन्हें इससे मुस्तस्ना रखा गया है। इस तरह से उन्होंने मुतालबा किया कि उनके हक में भी इसे लागू किया जाए। हम आज यहाँ डायरेक्टर साहब से मिलने आए थे। हमारी डिमांड यह है कि 2018 में मिनिमम वेजेस एक्ट हर किसी डिपार्टमेंट पे लागू हुआ है जो 6,750 रुपए है। हमारी डिमांड यही है, अगर हर किसी डिपार्टमेंट पर यह मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हुआ है तो हमारे ऊपर भी यानी कि हर डिपार्टमेंट हमारे ऊपर भी ये लागू किया जाए। ये हमारी पुरजोर डिमांड है। नाज़रीन, वाथोरा चारूरा के मकामी लोगों ने भी आज सड़कों पर निकलकर महकमा R&B के खिलाफ एहतजाज किया और उनका मानना है कि इलाके से जो सड़क जा रही है उस पर अगरचे पैचवर्क स्टार्ट की गई थी लेकिन उसे अधूरा ही छोड़ दिया गया है, जिसके नतीजे में इलाके में चलने वाली गाड़ियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि सड़क की हालत इस कदर ख़राब है कि यहाँ से जो उठने वाली मिट्टी है उससे उनके दुकानों और उनके मकानों को भी काफ़ी खराबी होती है। उनका मानना है कि यहाँ से गुजरने वाली हर गाड़ी, चाहे वो एम्बुलेंस ही क्यों ना हो, जो मिनटों का सफ़र है घंटों में तय करना पड़ता है। उनका ये भी मानना है कि इलाके से मुतल्लिक जो जी इज़्ज़त और जी शऊर लोग हैं उन्होंने कई बार मुतल्लिका हुकाम की नोटिस में भी इसे लाया, लेकिन हुकाम है कि इसकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दी गई है। इतना ही नहीं बल्कि चारूरा सब डिवीज़न में R&B की जानब से कोई भी रोड अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है, जिसकी वजह से अभी भी इस इलाके के रहने वाले लोगों को शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। करालपुरा टू चारूरा इन्होंने जो है कहीं कहीं पे पैचिंग की है, कहीं कहीं पे नहीं की है। यहाँ पे तो जो है बिल्कुल भी नहीं की है। रोड की बहुत बुरी हालत है। अभी हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसकी जल्द से जल्द मरम्मत की जाए और जो है हमारे दुकानें भी खराब हो रहे हैं, माल भी खराब हो रहा है, गाड़ियाँ भी खराब हो रही है। हम SDM साहब से भी अपील करते हैं कि इसकी जो मरम्मत है जो जल्द से जल्द की जाए, वो आपकी मेहरबानी होगी। वरना हम जो है अगर आपने ये कदम नहीं उठाया तो हम रोड बंद करने के लिए मजबूर है फिर। आप देखिए खड्डे देखिए सर कितने हैं यहाँ पे, गर्दा देखिए कितना है यहाँ पे। परेशान हो गए आम लोगों को, जो है प्रॉब्लम है बहुत, गाड़ियों को प्रॉब्लम हो रही है। जो है हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसकी मरम्मत जल्द से जल्द की जाए। शाहपुरा वाथर पे रोजान कि हाल हाल त्रो मैगडम यप करालपुरा पे चारूरा तम मज त्रोक यल कि तिमन तो कोर कहें वही इन जायन यमो यह त्रो सह वथान वापस बे 10-15 दह गो सोरे थोद वत कि करान रिक्वेस्ट गवर्नमेंटस खास कर DC साहबस कि तुम यू पान तुम दियो नजर यन तुम वो अस क्या प्रॉब्लम यन कि ये पुरसनी कह वजह क्या बे करालपुरा पे कम से कम वाथोरा पुलस तम त्रो यमो सड़क अति बराबर रेत गो यमो अति त्रम यह सड़क कि यह क्या वजह क्या अगर न फंड कहें पूछ बरान ट्रांसपोर्ट वो बरान टैक्स बरान रोड तम को गसान। इधर पैसन छतरगुल शांगस के मकामी लोगों ने भी आज मुतलका R&B दफ्तर के अफसरान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और एहतजाज के दौरान उन्होंने कहा कि यहाँ से गुजरने वाली जो छतरगुल सड़क है उसकी मैग्नीमाइजेशन अभी तक नहीं हुई है। हालांकि कई बार इस सड़क के हवाले से जो ग्रीवेंसेस है वो मुतलका हुकाम तक पहुँचाई गई है, लेकिन अभी तक भी इस पर कोई पेशरफ नज़र नहीं आ रही है। उनका मानना है कि इस छतरगुल रास्ते को भी मैग्नीमाइज किया जाए ताकि मकामी आबादी को सहूलियत मैसर हो सके। मसला 2018 एंडिंग नवंबरस मज त्रोक उत्तमन मैगडम शुभकान तम शुभकान पे हसा थम 2 किलोमीटर पेंडिंग ड्यूट तम
या CRFS तहत रोड गसन कंस्ट्रक्ट ये पे अशबल टू वाया रैनीपुरा छिद्रपुर अत थो 2 किलोमीटर वोन वारा लट DC साहब सद अत नोटिस मज पतमे वरी ब्लॉक दिवस तम साथ DC साहब KK सीधा साहब हमने उनकी नोटिस में लाया। उन्होंने R&B और PHE और PDD को इमीडिएट एक्शन करने का उनको हुक्म दिया। उन्होंने कहा था इसमें 8 पोल हैं बिजली के HT के, उन्होंने कहा था कि इसको एक्जन PDD को कि 8 दिन के अंदर इनको निकालना। उन्होंने एस्टीमेट बनाया और वो वहीं दफ्तर में पेंडिंग है। जम्मू कश्मीर में जब से UT बनी है कि डेवलपमेंट हो रहा है तो खासकर इस 2 किलोमीटर रोड की तरफ भी तवज्जो दीजिए। PHE डिपार्टमेंटस तम दपान पोस आर्मी वाले नश R&B वाले गसान तम दपान 20 करोड़ रुपये मगर अस वन तम पोसे गई तो कोत गई अगर यमो परस इन त्रा 90 लाख रुपये यमो वन पुरानी पाइप सही जुड़ ये तो नव वन पाइप अस वुची अत लीक योतन सड़क। इधर छानपुरा टंगमर कुंजर के मकामी लोगों ने भी आज एहतजाजी मुजाहरा किया और उनका भी यही मुतालबा था कि इलाके से शाहमौला से लेकर छानपुरा तक जो रास्ता गुजर रहा है उसकी मैग्नेमाइजेशन होनी चाहिए। उनका कहना है कि आसपास के सभी रोड्स को अगर मैग्नेमाइज किया गया ताहम इस रोड पर कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही है। उनका कहना है कि हजारों लोगों का गुजर इस रास्ते से रोजाना होता है लेकिन मुतल्लिका हुकाम की नोटिस में लाने के बावजूद भी आज तक इसकी ना ही मैग्नेमाइजेशन हुई है ना ही इसकी कोई पैच वर्क हुई है। तो उन्होंने भी मुतालबा किया है कि इस इलाके की तरफ तवज्जो दी जाए ताकि उन्हें आसानी और सहूलियत मैसर हो सके। यपर यह रोड बनोमुत यह खसान कसाई महला ये वुनुक तान जहन तह पृथमुत डिपार्टमेंटन तिथ पे जन बाकियन लिंकन पृथुक बाकियन ये त्रोक टंगमर्ग मज प्रत कुछ लिंकस त्रोक मगर यह सह लिंक ये लिंकस वुनुक तान जह आव न कह सुनवाई कर ये दवा यथ आय न कहोन वुनुक तान आन यथ कहीं कर लिहाजा कर कसाई महला तान खसान यह रोड शाह महला पे खसान कसाई महला अगर अत मैगडम करान तम तुम इंसान सत बना पान इंसान मगर मानान पान इंसान सत कह गाड़ ये तूता गर्द गुबार वतान मकान गई तबाह कुल गई तबाह इंसान पकन इंसान शेप डलान यम सात यप गाड़ पकान तह गर्द गुबार वतान लिहाजा कर तुहद वसादत महकमस अपील करान कि ये त्रो मैगडम अगर जन सारे लिखन त्रो तुम मैगडमाइज करो ये लिख तक मैगडमाइज रोजो तुम शुक्र गुजार। उधर रहमदाबाद अड़ीपुरा सोपोर के मकामी लोगों ने भी आज एहतजाज किया और इनका एहतजाज महकमा जल शक्ति के खिलाफ था। उनका कहना था कि इलाके में पानी की सप्लाई नहीं है और ना ही उन्हें साफ पानी फराहम किया जा रहा है। उनका मानना है कि कई मरतबा उन्होंने भी इस मामले को मुतल्लिका हुकाम के साथ उठाया लेकिन आज तक इस पर ना ही सुनवाई हुई है और ना ही इस मुश्किल को दूर किया गया है। नतीजा ये है कि आज मकामी लोग मुतल्लिका दफ्तर पर आए थे और वहां पर उन्होंने एहतजाज किया और एहतजाज के दौरान मुतालबा किया कि उन्हें पानी की सप्लाई फराहम की जाए। आब प्रॉब्लम ब्रोह कुन तो करो गुजारिश पूर रात धरना दित तौर लड़की आए गाड़ो हतो मज नफरस तो डस तो सह पर्सन सह लड़कस छन लड़की तस कोर दपान क्या कर तो तमें वोल हेलमेट अत आए पर्नाइश लड़की तमें तुट FIR तो सारी गाँव विट बंद रात आब रोज नलकन आब रोज कंटिन्यू से जी। मेरा शादी का 10 साल हुआ, 10 साल में हम कभी भी नल में पानी नहीं देखा। इतना पानी का दिक्कत है, हम प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज हम लोगों को अपना अपना नल में पानी दीजिए। पानी का टैंकर से कुछ नहीं होता है और ज्यादातर किसी को हर किसी का घर में पानी नहीं जाता है। अभी 2-3 साल से बहुत ज्यादा पानी का प्रॉब्लम हो रहा है। अब क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं हम लोग का जो अपना अपना जो पानी का नल है उसमें मेहरबानी करके पानी आया। नाज़रीन, शोपियां के अंदर एक चश्मा है जिससे नागराय नाग कहते हैं और इससे टूरिस्ट डेस्टिनेशन की हैसियत हासिल है और यही नाग या यही चश्मा आज गार्बेज साइट में तब्दील हो चुका है। मकामी लोगों का मानना है कि एक वक्त था कि इस चश्मे का पानी वो इस्तेमाल करते थे पीने के लिए, लेकिन आज यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी या शोपियां की जानिब से इसे डंपिंग साइट में तब्दील किया गया है। बल्कि उनका ये भी मानना है कि यहाँ पर जानवरों की खालें
और उनके जो बाकियाजात है वो यहाँ पर डाले गए हैं, जिसके नतीजे में इसका पानी आलूदा हो गया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि इस चश्मे की अहमियत और हिफाजत को देखते हुए और इससे जो पानी फराहम होता है उसको देखते हुए इसकी सफाई होनी चाहिए और यहाँ पर जो डंपिंग साइट है इसको भी ख़त्म किया जाना चाहिए और इसको दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाए ताकि इस चश्मे की अहमियत को बरकरार रखा जाए। सुबह के टाइम कुछ लोग आते हैं यहाँ से कूड़ा दाना फेंक के चले जाते हैं, शाम के टाइम आते हैं यहाँ कूड़ा दाना फेंक के चले जाते हैं। तो अब मोतबाना गुजारिश डीसी साहब से है कि वो चांदी दूर भी नहीं है, यहाँ मिनी सेक्टर नज़दीक ही है। मैं कहता हूँ खुदाया उनको बदबू भी नहीं आती होगी इस सूने से। अभी हम यहाँ हमें चक्कर आ रहे हैं, तो खुदाया ना यहाँ से बच्चे भी गुजरते हैं, बुजुर्ग भी गुजरते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा इसके साथ में एक नाग है, बहुत बड़ा मशहूर नाग है, उसकी हिस्ट्री हमें पता नहीं है, मगर उसकी तरफ भी अगर तवज्जो दिया जाए तो बहुत से लोग जो गरीब लोग हैं वो इसका पानी पीते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। तो मेहरबानी करके अगर ये कूड़ा करकट यहाँ से हटाया जाए या कोई गेट जो सामने होगा या रखा जाए गेट, कुछ किसी बंदे को रखा जाए, तो मेहरबानी करके यहाँ की आबादी भी अब बहुत तंग आ चुकी है। काफ़ी वक्त से कश्मीर की तलबा व तालिबात या नौजवानों के अंदर किताब लिखने का, पढ़ने का रुझान बढ़ रहा है और वो भी उस वक्त जब इंटरनेट का ज़माना है और जब सब कुछ इंटरनेट पर ही दस्तयाब है। लेकिन उसके बावजूद भी अब किताब लिखने का जो तस्वुर है वो कश्मीर के अंदर दिन ब दिन परवान चढ़ रहा है। आइसोटॉप एक ऐसी किताब है जो एक मेडिकल स्टूडेंट ने लिखी है जिसका नाम गुफरा हुसैन है और ये ईरान यूनिवर्सिटी में MBS की फर्स्ट ईयर की तालिबा है और उनका मानना है कि उन्होंने इस किताब को लिखा है, इसका शौक था, इसके बावजूद कि वो एक तालिबा है MBBS की और उनका मानना है कि जो शौक है उसको बरकरार रखना चाहती है। मेरा नाम गुफरान हुसैन है, मैं MBBS की स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर। मैं ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस में पढ़ रही हूँ। इसके अलावा मैं एक राइटर हूँ, पब्लिश्ड राइटर हूँ। इसके अलावा मैं क्रिएटिव फील्ड्स में बहुत सारा इंटरेस्ट है। तो आइसोटॉप एक साइंस फिक्शन बुक है और साइंस फिक्शन मेरा सबसे फेवरेट जॉनरा है सारे बुक्स में। मैं बहुत सारे बुक्स पढ़ती हूँ, लिखती भी बहुत कुछ हूँ, मगर सब पब्लिश नहीं होता, वो कुछ खास होता है जो पब्लिश होता है। तो आइसोटॉप मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि ये बुक प्रेजेंट जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट अ साइंस फिक्शन जो एक लड़की फंस जाती है दूसरी दुनिया में, जो वहाँ पे कुछ सीखती है, क्योंकि वो वापस भी आती है अर्थ पे और वहाँ पे देखती है कि यहाँ पे बहुत ही बदल गया है दुनिया, जैसे कि यहाँ पे खाने की शॉर्टेज हो गई है या इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर जो हम वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी है। मगर जो ये है एक सीरीज है, तो मतलब ये इसका फर्स्ट पार्ट है, अभी इसमें सेकंड भी है और थर्ड भी है जो आने वाला है इंशाल्लाह। नाज़रीन, आखिर पर ये इत्तला कि हलीमा बेगम ज़ौजा गुलाम नबी जो कि रहने वाली है कदीम सोपोर, जामिया कदीम सोपोर की, ये एक मोहल्लिक बीमारी यानी कैंसर में मुब्तला है और इस परेशानी के वक्त में उन्हें इलाज मुआलजे के लिए काफ़ी पैसा दरकार है। इनका मानना है कि इनके घर की हालत काफ़ी ख़राब है यानी काफ़ी गरीब है, तो इस ज़मन में उन्हें आवाम की माउनत की ज़रूरत है जो कि ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला है और उन्होंने मुतालबा किया और अपील की है आवाम से कि उन्हें इस मुसीबत की मड़ी में माउनत की जाए। डोज पे मे शाम 4 डोजन योत गुजार वह अपोर मे कहें कि मे बदल डोजन मे कहिमे खसन डोज त्रान कि मे डोजस योत गुजार कहें बस तमाम अपील कर अगर कंस कह मे ये मदद कर कि मतलब मे सोवर दिख मे सर्जरी पत दिख मे बायोप्सी टेस्ट पत दिख मे तमाम टेस्ट दिख मे आए तमाम टेस्ट खराब, मगर सर्जरी योत मे वनस ताकत कि न कलस मस तोदमुत कहें न मे बिल्डिंग बनावन न मे कह कर मे खाली पन जिंदगी ब्रेस्ट कैंसर गसान आमोद 4 डोज वो दोपुक मोदी कार्ड सह एडमिट दह शुरू ठीक है ये गोरख ना अत पे कह अत पत गई लियाकत कर सुपारी पत रोटो कम आवाम कर गुजरिश तूत गुजार कह अत कर मदद।
तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीठी लाल हांजुरी को ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।